गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिय। हरि बोल। एंड गर्व प्रभु जी, आप इसका मीनिंग पढ़ोगे? यस माता जी। हाँ। I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of Queen Brijbhanu and you are very dear to Lord Krishna. Hari bol. Very nice. And now we'll do Panchatattva Pranam Mantra together. All of us can do this together. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hari Bol. Very nice. Hari Bol. Perfect. So before we start with today's chapter, we need to do two activities. एक तो we need to revise all the names of the previous chapters because अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अब तक तो it's easy कि पता जी सिर्फ 2 chapters का name है, 3 chapters का name है. जब हम 10th तक पहुंच जाएंगे ना, then it will be a challenge to remember all the past 10 chapter names. ठीक है? So unless and until we revise every time, we'll not be able to remember. So we've done till now till chapter 5. Okay, so let me stop sharing and maybe all of us can do it together. Chapter 1. What was the name of the chapter 1? Observing the army in battlefield of Kurukshetra. Perfect. Action के साथ एक बार और करेंगे. Chapter 1 with action. Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. Hari bol. Very nice. Chapter 2. Contents of Gita summarized. Very nice. Chapter 3. Yes, third chapter में कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया. So it is कर्म योग. कर्म योग. Very nice, Aditya Prabhuji. Okay, perfect. Now we have chapter 4. Transcendental knowledge. Yes, Hari bol. Transcendental knowledge. And yesterday we did chapter number 5, जिसका नाम बहुत बड़ा सा था. Chapter number 5. Krishna's consciousness. Yes, perfect. Karma, yoga, action in Krishna consciousness, right? Consciousness is the heart, right? So by Krishna conscious heart. Perfect, very nice. So आज का हमारा chapter है, it is called ध्यान योग. ठीक है? So ध्यान योग का action is very simple. We'll say ध्यान, like हम ध्यान and योग. ध्यान and योग. ठीक है? तो कृष्णा ने सबसे पहले अर्जुन को बताया, सबसे पहले उनको नॉलेज दी. ही मेड हिम वाइज बाय सेइंग यू नॉट द बॉडी बट यू आर द सोल. फिर सेकंड थी उन्होंने उनको बताया कर्म योग के बारे में. फिर उन्होंने उनको बताया ट्रांसडेंटल नॉलेज. उन्होंने उनको बोला कि ये जो नॉलेज है ये पहली बार नहीं है मैं तुम्हें बताना हूँ, ये तो बहुत बहुत साल पहले मैंने सूर्य देव को भी बताई थी और ऐसे बहुत सारे जन्म हुए हैं हमारे पहले भी, पर मेरे को याद है और तुम्हें याद नहीं है. और उनको ये भी बताया कि अगर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ कि कर्म के जब हमने कर्म योग करा था तो कृष्णा ने बताया था कर्म से हम बंधन में बंध जाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम भगवान को सेंटर में रखकर सारी एक्टिविटीज करें. तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक आसान तरीका भी बताता हूँ. जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी कि जो भी इंसान मेरे जन्म माय अपीयरेंस एंड माय एक्टिविटीज उसको समझ जाता है तो वो इस भौतिक जगत से फ्री हो जाता है. he does not comes back here.
right? Then what did Krishna said yesterday? Peace formula. किसी को याद है peace formula? Do you remember peace formula? Yes, Mataji. Ma'am, can I tell? हाँ, yes, Nishika Mataji. Mataji, can हाँ, yes, all of you can, and all of you can also make a video and share of the peace formula. Nishika Mataji, go ahead. that I also make the video. हाँ, very nice. Go ahead, Nishika Mataji. Tell him what is the peace formula? Who is God? Who is the god? Krishna is the god. He has a transgender form with the peacock feather and a flute. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna Is the Is supreme the controller, control. yes, ma'am. and Krishna is the supreme controller. Krishna is the only well-wishes friend. Hari Bol. Very nice, Nishika Mataji. Very, very nice. Very beautiful. Who else wants to try the peace formula? Mataji, can I? हाँ, yes. Yes. Yes, Shreya. Yes, yes, Who yes. is God? Krishna is God. Mataji. He has a Sham Sundar He form has a Sham Sundar form. with a Krishna peacock feather. with a peacock feather and a flute. Yes. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is our best. Krishna is our best well-wisher friend. Yes. Hari Bol. Hari Bol. Very nice. Hari Bol. Yes. Okay. Let's all of us to do it together. Okay. Okay. So who is God? Krishna Krishna is God. Krishna is Krishna. God. Krishna has a Sham Sundar form Krishna has a Sham Sundar form. with a peacock feather With a and peacock flute. feather and flute. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is the supreme controller. Krishna is our best well-wisher friend. Krishna is our best friend. Hari Bol. So this is what Krishna told Arjun yesterday, because Arjun was saying, Krishna, सही सही बताओ कि काम करना है कि काम नहीं करना, और भक्ति योग में काम करना है कि कैसे काम करना है. कृष्णा लाइक ओहो मैंने कुछ ज्यादा नॉलेज दे दी लगता है, सब कुछ इकट्ठे बता दिया. कृष्णा कहते हैं अच्छा मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू. So you should work, but you should keep out of the two that is not working and out of working by keeping Krishna in the center. What is more important or what is more perfect is when we do work by keeping Krishna in center. So again कृष्णा उनको बोल रहे हैं, जैसे उनको उन्होंने कर्म योग में भी एंड में यही बताया था, फिर से वो बोल रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वो कार्य है जो मेरे को सेंटर में रखकर किया जाए. यानी आप अपना नॉर्मल काम करो लेकिन मुझे सेंटर में रखकर करो. और इससे रिलेटेड हमने स्टोरी सुनी थी, तो कैसे वो राजा जब भगवान जगन्नाथ के पास जाता है, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है और फिर लड़ाई करने जाता है, तो ही विंस द वॉर. Not only does he wins the war, उनकी लड़ाई के लिए भगवान जगन्नाथ और बलदेव खुद आते हैं, right? So now let's see what is Krishna wanting to tell Arjun about ध्यान योग. ठीक है, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा है ध्यान योग. But before that we have to do a small activity. So मैंने आप सब लोगों को एक YouTube का वीडियो देखा था. आप सब लोगों ने इसको चेक करा कि पद्मासन कैसे करते हैं? आपको पता है पद्मासन कैसे करते हैं? हमने स्कूल में भी जब हम योगा करते हैं तो पद्मासन करवाया जाता है. पद्मासन और चौकड़ी मारने में फर्क होता है. जब हम चौकड़ी मारते हैं ना तो हमारे पैर नीचे होते हैं, जब हम पद्मासन में होते हैं तो हमारे पैर एक के ऊपर एक होते हैं. Yes, ma'am. You all know, or shall I show you the video and then we can do the answer? Okay, ma'am. Shall I share the video with you? Shall I show it on the screen? Yes, Mataji. ठीक है, okay, let me do that. Mataji, am I doing right? Yes, one second, beta. Yes, Nishika Mataji, you're doing right. Who else was asking? Yes, Chanu Mataji. Haan, perfect. Very nice. This is exactly how you need to do Padmasan. Very nice.
Let me share my screen again. Mataji, like this? Yes, Garv Prabhuji. Yes, very nice. Okay, let me. आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, perfect. Sit in Dandasana. Bend your right knee. Holding your right ankle and foot, place it high on your left thigh. Then bend your left knee. Holding your left ankle and foot, place it high on your right thigh. Rest the back of your palms on your knees. Perform the Jnana Mudra by joining the tips of the thumbs with the index fingers. Sit erect, ठीक है, आपको समझ आ close गया your how eyes we need to and do this? observe your breath. Yes, Mataji. Yes. Okay, perfect. So अब हमें क्या करना है? अब हम सबको पद्मासन में बैठना है, but we have to do two things. We have to first sit in Padmasan, then we have to keep our back erect, यानी back बिल्कुल straight, हाथ बिल्कुल straight, आँख बंद, eyes closed, and so deep sitting posture हो गया. Second thing what we need to do is we need to ensure कि हम अपने mind से कुछ भी ना सोचें. You don't have to think anything at all. मतलब कि mind में कोई भी thought नहीं आनी चाहिए 2 मिनट तक. ठीक है? So जब आप लोग अपनी position ले लोगे, then I will start the timer. Okay? And it'll be good if you could turn on your cameras. And if you don't want to turn on your cameras, that is also okay. But do this and then we'll ask question. How do you feel? ठीक है? Wonderful. Hare Krishna Janya. गायत्री प्रभु जी, हाँ यस प्रभु जी, आप क्या कह रहे हो बेटा? किसी कंफर्टेबल प्लेस में बैठना. बेस्ट पद्मासन वैसे तो जमीन पर होता है. जमीन पर अगर आप आराम से बैठोगे, हाँ, यू कैन आल्सो टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल. यस भुवनेश प्रभु जी, परफेक्ट. यस यस, क्योंकि दैट्स द बेस्ट प्लेस टू डू पद्मासन. नहीं तो व्हाटएवर यू हैव, सोफा, बेड, कहीं पे भी बैठ कर सकते हो आप. ठीक है? यस प्रीति माता जी, वेरी गुड, परफेक्ट. सो इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी, अनन्या माता जी, यू रेडी? राइट? Yes, Mataji. Okay, perfect. So I'll start the timer now. So now only what you need to do is all of you need to close your eyes and you need to stop thinking. The moment you close your eyes, I will start the timer. Okay, so close your eyes and stop thinking at all. कुछ भी नहीं सोचना, eyes बंद करना है. Stop your thought process, back straight. Okay, back straight, close your eyes. Preeti Mataji, ready? Okay, I'm going to start the timer now. Eyes closed, Kana Mataji. Eyes closed. Ananya Mataji, eyes closed. अभी आधा मिनट ही हुआ है. We still have 1.5 minutes. 36 seconds हुए. Don't think anything. Fifty seconds. We are halfway through. 1 minute हो गया है.
45 seconds left. Back straight, eyes closed. कुछ भी नहीं सोचना. Thirty seconds left. $20 seconds left. $10 seconds left. 8, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Okay, so now you can come out of the Padmasana pose. Okay, so let me ask you, how did you feel? कैसा लगा? पहली बात, how did feel it like that we are very relaxed. हाँ, it is relaxing. Yes, definitely. What else did you feel? कितनी देर तक बैठ सकते हैं मिस पद्मासन में? 5 minutes. When 1 hour, very nice. 5 minutes. जी मेरे को तो प्रैक्टिस है माता जी मैं पूरे दिन Yes, yes. Darshita Mataji, for how long can we sit on this asan? Half an hour to 1 hour. Half an hour to 1 hour. Yes, with back straight, बिल्कुल हिलना नहीं है, eyes closed, right? Yes. Maximum 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. उसके बाद किसी को बुलाना पड़ेगा, पैर बाहर निकालो क्योंकि पैर सुन हो जाएंगे, right? Okay. Second thing, what about mind? Were you able to stop your thoughts? Yes माता जी. Very nice. What were you Yes, telling your Mata. mind? आप अपने mind को क्या बोल रहे थे? माता जी बस कुछ नहीं सोचना. हम अपने माइंड को बोले कुछ नहीं सोचा. तो ये जो फैक्ट है कि हम माइंड को बोलते हैं कुछ नहीं सोचना, ये भी एक थॉट ही है. माता जी बट माता जी मैंने बस शुरू में कहा था माता जी, उसके बाद ना मेरे फादर बोलते हैं कि जब भी हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए, उससे कुछ भी दिमाग में नहीं आता. हाँ, तो yes. माता जी मैं अपनी सांसों पे ही ध्यान दे रही थी, इसलिए कुछ दिमाग में आया. माता जी. हाँ, हरे कृष्णा अदिति माता जी. Yes, माता जी. माता जी, I am reciting महामंत्र. Yes, very nice. That's Hari bol. But the mind, it's still mind को ना कुछ करने के लिए चाहिए ही चाहिए. ने चाहे हम उसको हरे कृष्णा महामंत्र रिसाइट कराएं या माइंड को बोले अच्छा now you observe the breath, माइंड को बोले अपने सांस को ऑब्जर्व करो, हम कितनी बार सांस ऊपर लेते हैं नीचे लेते हैं, क्योंकि माइंड इज वन थिंग जो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि माइंड खाली बैठे. इसलिए ये युग धर्म है हरे कृष्णा महामंत्र यानी हरे नाम संकीर्तन. तो हमें माइंड को हरे नाम संकीर्तन में लगाना है. So why we did this ध्यान योगा? Yes, Aditya Prabhu ji. Yes, Prabhu ji. माता जी मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर जैसे माइंड में हरे कृष्णा महामंत्र करे तो हाँ. उस थॉट में तो नहीं आ गया ना वो? हाँ, वो भी थॉट में आता है पर वो that's a good thought. कर सकते Do हैं it. ना? हाँ, हम yes. ऐसे पद्मासन में? Yes, we can do that. So why we did this ध्यान योगा? Why we did this exercise was क्योंकि जो ध्यान योगा है हमने 4 युग करे थे. कौन सी युग में लोग ध्यान लगाते थे? हाँ जी बेटा. यस शौर्य प्रभु जी. माता जी पद्मासन करने से माइंड भी फ्रेश होता है ना हमारा? हाँ, माइंड फ्रेश होता है. यस, और हमें करना चाहिए क्योंकि हम फिजिकली भी हम फ्लेक्सिबल बनते हैं. इट इज वेरी नाइस. सो जो योगा हम लोग सीखते हैं ना, जो हम पोजेस सीखते हैं योगा के, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर कंप्लीट योगा. वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, तो करना चाहिए. Yes. पहले जो सन्यासी होते थे वो ऐसे ही करके भक्ति करते थे ना, बैठ के ऐसे. हाँ, ये सतयुग में करते थे. सतयुग में लोग इस पद्मासन पे they used to sit on पद्मासन for years and years. और हम एक पूरे दिन तक भी नहीं बैठ सकते हैं ना, which proves कि कलयुग में ध्यान योगा is not the right method, right? क्योंकि हम ध्यान लगा ही नहीं सकते ना, हम उस पोज में बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर पोज में बैठना चाहिए, एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, आसपास कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, कहीं पर टीवी चल रहा है या कहीं किचन की आवाज आ रही है वो नहीं आनी चाहिए. तो वो हमारे लिए इस समय प्रैक्टिकल नहीं है.
क्योंकि वैसे ही कलयुग इज देयर इज सो मच ऑफ नॉइज इन कलयुग। बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, कभी टीवी की, फोन की। So ध्यान योग is not meant for Kali Yuga. Okay, so let's see what does Krishna has to say about Dhyan Yoga. Does anybody else wants to share the experience? No. Okay, sure. So let me share my screen. अब कृष्णा अर्जुन को ध्यान योग के बारे में क्या बताते हैं? That is what we'll listen today. Okay, perfect. So we'll see now. पार्थ प्रभु जी, आप इसका हिंदी वाला मीनिंग पढ़ लोगे बेटा? Would you be able to read this meaning in Hindi? Yes, Mataji. Yeah, thank you. योग सभा के लिए योगी Mataji, I cannot able to see this word. अच्छा बेटा, हाँ मैं एक मिनट इसको वो करती हूँ. Mataji, I can read in English also. हाँ, yes, 1 second. You want to read in English? हम English बोल लो. 1 second. Let me. You're able to see ना? Yeah, Mataji. Okay, perfect. Go ahead. To practice yoga, one should go to a serene place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deep skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a scarred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. हाँ, हरि बोल. So कितनी सारी कंडीशंस चाहिए हमें ध्यान योग लगाने के लिए, राइट? ध्यान योग के लिए, दैट मीन्स योगा के लिए, जो सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है. सबसे पहले हमें एक सिक्लूडेड जगह में जाना है, यानी कि हम घर में नहीं कर सकते. इट हैज टू बी इन अ प्लेस लाइक अ फॉरेस्ट. फिर उसके हमें कुशा ग्रास, यानी एक तरह की खास तरह की घास होती है, उसके ऊपर बैठना है. उसके ऊपर भी डियर की स्किन रखनी है या सॉफ्ट कपड़ा रखना है. फिर जो सीट है वो बहुत नीची भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए. यानी जो नॉर्मल जमीन है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पर बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए. एंड उसके बाद योगी को बिल्कुल फर्मली बैठना है, जैसे आप सब लोग बैठे हुए थे पद्मासन में, तो बिल्कुल बैक स्ट्रेट प्रॉपर पद्मासन में. एंड देन ही शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस by fixing his mind on one point. एक पॉइंट पर अपने माइंड को लगाना है. So wow, कितना ही मुश्किल है ना? How difficult is it? Okay, let's see. भुवनेश प्रभु जी, आप हिंदी में मीनिंग पढ़ोगे बेटा इसका? Yes, mother. हाँ, sure, thank you. योगाभ्यास के लिए योगी एक सॉरी बेटा, एकांत. हाँ, एकांत. योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बीशा दे और फिर उसे मृगछाला से ठोके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे. आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो. योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास. हाँ, हरि बोल. अब अगर कोई मुझे बोले कि ऐसे आपको ना ये मेथड फॉलो करना है, इस मेथड से आप क्या करोगे, आप भगवान को पा पाओगे, तो मैं ये सुनने पर ही कंफर्म है कि मैं नहीं कर सकती. आई एम 100% श्योर आई कैन नॉट डू दिस.
टू मेनी कंडीशंस अप्लाइड। आपको एक एकांत जगह पे जाना है, और एक और चीज, वह एक पवित्र स्थान भी होना चाहिए। तो मुझे मैंने कि एकांत जगह में, एक धाम में जाना है, वहां मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी, मुझे आई नीड टू मेक श्योर वहां पर कोई कीड़े ना हो, कोई सांप ना हो, फिर वहां पर एक कुछ घास के ऊपर बैठना है, उसके ऊपर डियर की स्किन लगानी है, उसके ऊपर एक मुलायम कपड़ा लगाना है, वो जो पूरा आसन है वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक, सबसे मुश्किल, अपने मन और अपनी इंद्रियों और अपने कर्मों को वश में करते हुए। मुझे तो आधे घंटे में प्यास लग जाएगी। have to find a deer skin also. हाँ, वो तो सबसे मुश्किल है और इसके बाद आधे घंटे में प्यास लग जाएगी, है ना। सो कृष्णा इज सेइंग, ये ना ध्यान योग का मेथड है, ऐसे कृष्णा ने अर्जुन को बताया। अब सोचो, लेट अर्जुन को कैसा फील हो रहा होगा इसमें, है ना, व्हेन अर्जुन, सो लेट्स सी, जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन ने क्या बोला कृष्णा से। ओके ओके, सो कानव माता जी, आप इसका इंग्लिश या हिंदी में से कोई मीनिंग पढ़ोगे बेटा। Arjuna said, "Oh, Arjuna, the system of yoga which you have summarized appears impractical and Unendurable. unendurable to me, for the mind is restless and Unsteady. परफेक्ट, हरी हरी बोल। उनकी थोड़ी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा वो आई थिंक वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, डोंट वरी, दैट्स ओके। सो जानिया माता जी, वुड यू बी एबल टू रीड द हिंदी मीनिंग इफ आई अनम्यूट यू? या अब आपकी आवाज नहीं आ रही जानिया माता जी। I lost you. Okay, अनन्या माता जी, आप पढ़ोगे बेटा मीनिंग हिंदी वाला? यस माताजी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। Yes. So how many of you agree with Arjun? How many of you say कि हम अर्जुन से agree करते हैं, कृष्णा ये अव्यवहारिक है, it is impractical, unendurable, है ना, ये because mind is restless and unsteady. Yes, माताजी। आपको पता है सबसे फास्ट चलने वाली चीज इस पूरे यूनिवर्स में क्या है? सबसे फास्ट चलने वाली चीज, yes, our mind। एक सेकेंड में वो इंडिया से लेट्स से अमेरिका पहुंच जाता है, एक सेकेंड में वो यहाँ से जुपिटर और मून और सन के ऊपर भी पहुंच सकता है। इनफैक्ट एक सेकेंड में नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। सो माइंड इज रेस्टलेस, इट्स कंप्लीटली रेस्टलेस। सो कृष्णा कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा, आप ये क्या बता रहे हो, दिस इज कंप्लीटली इनप्रैक्टिकल, it is not possible. And Arjun from the Dwapar Yuga is saying that, so for Kali Yuga definitely it is not possible, right? Because mind is restless. Okay, now let's see what is Krishna then replies to Arjun. So Krishna says sorry, ta-da. Okay, so who wants to read? Aditi Mataji, आप हिंदी में इंग्लिश में कोई भी पढ़ोगे बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है अदिति माताजी। I don't know if it's me, only me. Hare Krishna. हाँ, अब आ रही है, yes हाँ। For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. हरी बोल, yes, perfect. प्रेषा माता जी, अब हिंदी में पढ़ोगे बेटा? प्रेषा माता जी? हाँ माता जी। Yes, go ahead. हे कृष्णा, चंकी मन चंचल, अस्थिर, अचल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है।
अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हाँ राइट, परफेक्ट, थैंक यू, हरी बोल। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी छोटे बच्चे की बात हो रही है जो बहुत नॉटी है, बहुत ही हटीला है, बहुत ही जिद्दी है ना। इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल, वी टॉकिंग अबाउट स्मॉल चाइल्ड, यू नो, वो जो 3-4 इयर्स के बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ही हट करते हैं, उनको अब वो इतने छोटे, उनको समझाया भी नहीं जा सकता। सो अर्जुन इज सेइंग कृष्णा, मन जो है ना वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही हटीला है और अत्यंत बलवान है, यानी एंड ही सेइंग माइंड इज वेरी स्ट्रांग, इमेजिन, एंड इट इज अ फैक्ट। सो अर्जुन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि माइंड इज वेरी स्ट्रांग। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं एक बारी में वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल, यस, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे को जितने भी हमें लगता है ना कि हमें किसी वजह से दुख पहुंचा, एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा दुख हमें अपनी माइंड से ही पहुंचता है, बिकॉज आवर माइंड कीप्स अस टेलिंग अस थिंग्स, यू नो, इसलिए हमें इसको सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, राइट? हाँ जी बेटा, ये माता जी आज हम श्लोक भी रीड करेंगे? हाँ, हम श्लोक भी रीड करेंगे डेफिनेटली। और श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्गनग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो नाउ अब कृष्ण उनको बताते हैं, ठीक है अर्जुन, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, माइंड से इतना डरो मत, यू नो, वट एवर यू सेइंग इज राइट, मतलब जो तुम कह रहे हो सही है, वो बहुत सारे लोगों को सेम फीलिंग आती है, पर माइंड से डरने की जरूरत नहीं है, राइट? सो अब कृष्णा उनको कैसे बताते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, और बेसिकली हमारे लिए अर्जुन ने पूछा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय अर्जुन बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ताकि हमें पता चले कि हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एन uncontrolled mind is our worst enemy, but if we are able to control our mind, it is our best friend, right? So वृंदा माता जी, अब हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक मीनिंग पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. यस, तो कृष्ण ने दो चीजें बताई। यस, आई एग्री अर्जुन, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, दो चीजें, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ओके, सो somebody can read the meaning in Hindi. चारू माता जी, आप हिंदी में पढ़ोगे बेटा मीनिंग? ओके माता जी। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा वृत्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरि बोल, वेरी नाइस। सो नाउ कृष्णा इज सेइंग, यस इट इज, यू राइट, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। So what does Krishna means when he says detachment, कि हमें अपने माइंड को डिटैच करना है, हमें अपने माइंड को अलग करना है, किस चीज से डिटैच करना है हमें अपने माइंड को? Anybody wants to guess? हमें अपने माइंड बुरी चीजों से, यस, और किस चीज से डिटैच करना है हमें माइंड? परेशानियों से, यस, फैमिली मेंबर्स जो हमें भगवान से दूर कर रही हैं चीजें, हाँ, एनीथिंग व्हिच कॉजेस प्रॉब्लम, और हमें जो हमारी सबसे बड़ा मी एंड माइन, मेरा से हमें डिटैच करना है, बिकॉज द मोमेंट वी रियलाइज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो वो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लास्ट कल हमने पीस फॉर्मूला सीखा था ना, that Krishna is the supreme controller, he is the supreme enjoyer, and he is a best wisher friend, well wisher friend, which means everything belongs to Krishna only. The moment we realize कि this belongs to Krishna and we've got this to use, और वो हमारी प्रोपेंसिटी खत्म हो जाए कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, so the moment we detach ourselves, then our mind, will be able to control the mind, and with practice, okay? Then Krishna tells Arjuna something very important. Yoginam api sarvesham matgatenantaratmana shraddhavam bhajate yo mam
समे युक्त समो मतः। And this is the one that we need to remember. This is a very nice shloka, very beautiful shloka that Krishna tells Arjun, और ये बहुत ही सुंदर है, इसको हम learn करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? So Janya, Mataji, can I read? हाँ, yes, go ahead. Go ahead. Ma'am, can I read? Mataji, can I read? हाँ, अभी कोई पहले बोल रहा था ना, हाँ, go ahead, read बेटा. Read, who was saying? So who? Prisha Mataji, आप बोल रहे थे? या Prisha Mataji, go ahead. हाँ Mataji. Yes, yes. Okay. And of all yogis, the one with the great faith, who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental knowledge, loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. हाँ, so Krishna is saying सभी योगी से वो इंसान जो who's faithful to me, who's thinking of me within himself. जैसे हमने जब पद्मासन करा था तो किसी ने बोला था कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र सोच रहा हूँ, right? So he's thinking of me and who renders transcendental loving service to me. यानी कि जो अपना कार्य मेरे लिए करता है, he is the most intimately united, यानी मुझसे बहुत close है, and with me in yoga and the highest of all. That is my opinion, right? Okay, so let's see if somebody give Riti Mataji, आप हिंदी में पढ़ पाओगे इसको? Yeah? Let me unmute. Yeah. Yes, Mataji. और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी प्राण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे प्रेम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों से स्वच्छ है, सर्वोच्च है, टॉप, यही मेरा मत है. हाँ, so भगवान ये कहते हैं कि सभी योगियों में से वो इंसान जो मुझे who thinks of me, जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरे को भी सेंटर में रखकर एक्टिविटीज करता है, वो सबसे सर्वोच्च है, right? So this is what Krishna is saying कि ध्यान योग में भी, हाँ जी बेटा, yes. माताजी मैं इसका इंग्लिश पढ़ूं? हाँ, yes, please पढ़ो बेटा, yes. Okay, Mataji. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself and renders Mataji क्या लिखा है? Transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Yes, हरि बोल. सब ध्यान योगा के बारे में कृष्णा बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें ध्यान योगा के बारे में बता दिया कि ध्यान योगा भी एक मेथड है जिससे हम इस बॉन्डेज से बाहर निकल सकते हैं, कर्म के बॉन्डेज से बाहर निकल सकते हैं. पर अब तुम ही देख लो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस है. तुम्हें एक सिक्लूडेड जगह में जाना है, वो जगह धाम भी होनी चाहिए, वहां पर कुशा घास भी चाहिए, वहां पर डियर स्किन कपड़ा भी चाहिए, और वो जगह ना ऊंची होनी चाहिए ना नीची होनी चाहिए. तुम्हारे को बैक स्ट्रेट रखना है, उसके बाद अपने माइंड और इंद्रियों को कंट्रोल भी करना है. तो उफ, इतनी सारी चीजें. लेकिन फिर एंड में कृष्ण बताते हैं मेरे ओपिनियन में वो योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो अपना सारा कार्य, यानी कि वो इंसान जो अपना सारा कार्य भगवान को सेंटर में रखकर करता है, तो वो योगी होता है. उसको जंगल में जाकर योगा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना कार्य करते समय ही भी योगी बन जाता है. यानी कि इफ ऑल ऑफ अस डू आवर वर्क thinking of Krishna, then all of us will be just like meditating in the forest. यानी हम योगी बन जाएंगे, उस योगी के बराबर हो जाएंगे जो जंगल में जाकर मेडिटेट करते हैं. That is Krishna's opinion. कृष्णा कह रहे ये मेरा ओपिनियन है. अर्जुन, तुम्हें जंगल में जाकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपना कार्य करो. और अर्जुन का कार्य क्या था एज अ क्षत्रिय? What was his job?
Fighting. Yes, fighting. Fighting. Yes, rightfully fighting. His job was to protect his citizen as Mataji, fighting for dharma. fighting for dharma. Yes, that's right. Fighting for dharma. अपनी प्रजा को बचाओ और धर्म के लिए लड़ो, ये तुम्हारा कार्य है। मेरे को सोचते हुए, ये सोचते हुए कि ये मैं कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, keep me in the center and then you do your job, then you will be the topmost yogi, right? So ये सुनकर आई होप अर्जुन को रिलीफ मिला होगा, बट वी नो अर्जुन ने फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, सो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि अर्जुन ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सो वी हैव टू एक्टिविटीज बिफोर वी कम टू आवर टुडेज एक्टिविटी। एक तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक हमें श्लोका लर्न करना है, ठीक है। नाउ जब कृष्णा कह रहे हैं कि यू शुड always keep me in the center while doing an activity, so there is one formula that Srila Prabhupada gave us, right? So all of us can read this formula. What is this formula? Always remember Krishna, never forget. हाँ, always remember Krishna, never forget Krishna। यानी कि हर काम करते समय हम भगवान को याद करें और कृष्ण को कभी नहीं भूलें, क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हम बनेंगे टॉप मोस्ट योगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कर सकते हैं, राइट? सो हम ऐसा क्या करें? हाँ जी बेटा, यस, हाँ यस निशिका माता जी, यस यस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यस बेटा। माता जी, कृष्ण जी को कितना टाइम लगा था अर्जुन को भगवद गीता सुनाने में? 45 मिनट्स। कृष्ण को लगते हैं ओनली 45 मिनट्स। यस निशिका माता जी ने स्पॉटलाइट। वेरी नाइस। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। परफेक्ट। हरी बोल निशिका माता जी। हाँ जी बेटा, यस। उन्होंने अर्जुन को 45 मिनट में गीता सुना दी और उनके प्रश्न के आंसर भी दे दिए। हाँ यस, 45 मिनट्स में, क्योंकि अभी तो हम एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय क्या था, बोथ ऑफ देम वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृष्ण आंसर दिया, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने आंसर दिया। मतलब उन्होंने गीता जो है वो गा के सुनाई थी ना, बात कर सुनाई थी। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे बात कर सुनाई थी, पर ये है कि संस्कृत में बात कर सुनाई थी। पर माता जी 5 मिनट्स उन्होंने युद्ध भी स्टार्ट कर रहा था। 45 मिनट्स युद्ध भी रुका हुआ था, सब लोग रुके हुए थे, क्योंकि अभी अर्जुन और कृष्णा बात कर रहे हैं ना, इसलिए पूरे 45 मिनट्स रुके थे। पूरे 45 मिनट्स, यस यस। अभी तो आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। बात भी नहीं करते, कृष्णा ने उनको अपने एक बहुत विराट रूप भी दिखाया था। सो बात करते करते भी, हाँ यस। माता जी आपने कहा था कि मतलब सब लोग वहाँ मतलब रुके हुए थे, सब सुन रहे थे भगवत गीता। तो माता जी जो मतलब दूसरे जो अधर्म के साथ थे, माता जी फिर भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो लड़ाई ना करें? यस यस, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा। जब दुर्योधन ने भगवान के विराट रूप को देखकर नहीं सोचा कि लड़ाई ना करे, तब भी उन्होंने भगवान को इंसल्ट करने की कोशिश करी, तो बाकी सब लोगों ने क्या सोचा होगा, right? Okay, so coming back to the point, always remember Krishna and never forget Krishna, क्योंकि इससे हम बन जाएंगे टॉप मोस्ट योगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम always remember Krishna करें, never forget Krishna करें? जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैं और विदित हम जब बाहर जाते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं, तो हम मार्केट में जब भी कुछ खरीदते हैं, हम भैया को जरूर बोलते हैं कि हरे कृष्णा, थैंक यू भैया। या हम रिक्शा में जाते हैं तो हम भैया को बोलते हैं हरे कृष्णा, थैंक यू भैया, है ना। और जैसे कि जब आप सब लोग इतनी ब्यूटीफुल अमेजिंग सी अपनी ड्राइंग्स भेजते हो या इतने अच्छे से रिसाइटेशन करते हो, तो हम बोलते हैं हरी बोल। हम ये भी बोल सकते हैं ओ स्प्लेंडेड जॉब, अमेजिंग, है ना, सुपर्ब, बट वी से हरी बोल। सो दैट मींस एक्सप्रेसिंग एन हैप्पीनेस, पर हम हरी का नाम भी ले रहे हैं साथ में, है ना। यस, डू यू रिकॉग्नाइज दैट? यस माता जी। सो और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा करें? और हम अपना सारा काम कृष्णा को क्या कहते हैं, ऑफर कर सकते हैं। हाँ, ऑफर कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। पता है आदित्य प्रभु जी, जब मैं सुबह अपने ऑफिस, जो मैं ऑफिस का लैपटॉप खोलती हूँ ना, उससे पहले आई प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा आई एम लॉगिंग इन, मैं अपने ऑफिस के काम के लिए लॉग इन कर रही हूँ, तो आई ऑफर ऑल माय वर्क टू यू, सो प्लीज हेल्प मी कि मैं काम अपना अच्छे से कर सकूं, ताकि मैं वो अच्छा काम आपको ऑफर कर सकूं, है ना। What else? Very nice आदित्य प्रभु जी। और क्या कर सकते हैं? माता जी हम अपने दोस्त की तरह उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि हम हर समय
अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहते हैं, या जो हम्म, हमारे सबसे करीब होते हैं जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो हाँ माता जी, हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हमें सबसे करीबी इंसान कृष्णा को बनाना चाहिए। हाँ, यस, वी शुड मेक कृष्णा बेस्ट फ्रेंड। इनफैक्ट बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कृष्णा को, जैसे इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दे राइट अ लेटर एंड दे गिव इट टू कृष्णा, और दे सबसे इंपॉर्टेंट दे राइट थैंक यू नोट्स टू कृष्णा। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं थैंक यू करने के लिए, यू नो, हमारे पास एसी है घर में थैंक यू करने के लिए, हमारे पास साफ पानी आता है हमें थैंक यू करने के लिए, वी आर एबल टू Ma'am, ब्रीथ, we can say to thank you to giving this Gita Gyan classes. yes we can do that also, so anything, you know, बहुत सारी चीजें कृष्णा को थैंक यू करने के लिए। so हम रोज 5 चीजें लिख सकते हैं, कृष्णा आई वांट टू थैंक यू फॉर 1 2 3 4 5, every day you can write 5 things and you can say thank you to krishna, right, in a notebook, एक छोटी सी notebook बनाकर you can write 5 things and say krishna I want to thank you for the water, my parents, आज तो मम्मा ने इतने अच्छे राजमा चावल बनाए, thank you so much for that, you know, because he is the source of everything, right? So he's the one who gives taste also. And in Ma'am, fact, doesn't anybody will make it of Krishna to the brother also? बिल्कुल बिल्कुल, I want to tell you one thing, Krishna says I am the taste of water। और लास्ट ईयर ना मुझे कोविड हो गया था, तो कोविड में क्या होता है कि मुंह का टेस्ट चले जाता है, एंड वो 2 वीक्स तक आई वाज लाइक, वो पानी पीते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या कड़वी सी कोई चीज पी रही हूँ, एंड आई वाज प्रेइंग टू कृष्णा कि हे भगवान मेरे टेस्ट वापस आ जाए, मेरे को पानी टेस्ट करना है, आई वांट टू टेस्ट द वाटर, यू नो, अमेजिंग राइट। व्हाट एल्स, और क्या कर सकते हैं, सोचो 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 सोचो, what else can we do? I mean, you can unmute yourself and speak। हरे कृष्णा सुभद्रा माता जी, do you want to suggest something, और हम क्या कर सकते हैं to always remember कृष्णा, भगवान को हमेशा कैसे याद कर सकते हैं? We are एक चीज आप लोग रोज करते हो, जैसे आप लोग श्लोका लर्न करते हो, है ना, that is also one method of remembering कृष्णा, right? और एक चीज आप लोग अभी कर रहे हो, which is श्रवणम, attending the class, that is also one way of remembering कृष्णा, right? माता जी, हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हाय हेलो कहते हैं, उसकी जगह हम हरे कृष्णा बोल हरे सकते हैं। कृष्णा कर सकते हैं, yes that's right, perfect, माता जी, yes, हमारे घर में माता जी कोई भी जैसे कहीं बाहर जाएगा फिर हाँ भी बोलेगा, कोई घर में आते हैं हम कहीं बाहर हाँ से तब भी बोलते हैं, और जब हम किसी से मिलते हैं या फोन पे बात करेंगे तब भी बोलेंगे। और हरे, माता जी, हाँ yes, मेरे दादा जी को, मेरी मौसी को, सबको आदत हो गई है हरे कृष्णा राधे राधे बोलने हाँ की। राधे, हाँ तो हेलो की जगह बोल सकते हैं हरे कृष्णा, वेरी नाइस, यस। सॉरी सुभद्रा माता जी, व्हाट यू वर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रही थी बेटा? माता जी, जब हमारे एग्जाम होते हैं तब हम कृष्णा को थैंक यू बोल सकते हैं। हाँ यस बिल्कुल, थैंक यू भी बोल सकते हैं, एग्जाम से पहले प्रे भी कर सकते हैं कि कृष्णा हाँ जी। आई हैव स्टडीड, प्लीज हेल्प मी रिमेम्बर इट, क्योंकि अगर हमें याद ही नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में हम कैसे करेंगे, है ना, बिकॉज कृष्णा सेज आई एम द वन हु गिव्स यू रिमेम्बरेंस and I am the one who gives you forgetfulness, so we pray to krishna, krishna please help me remember what I've studied, है ना। माता जी, Can do Smaran and Vandana. हाँ यस, वेरी नाइस, यस। माता जी, मैं रात को हाँ, एग्जाम से पहले वाली रात को अपनी पेंसिल और पेन्स कृष्ण जी के पास रख देता था। ऑफर कर देता, वेरी नाइस आरव प्रभु जी, वेरी नाइस, हरी बोल, परफेक्ट, माता जी, हम भी ऑफर करते हैं। वेरी नाइस, हरी हरी बोल, perfect, so yes, so we can say Hare Krishna to our dadu dadi। हाँ जी बेटा। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम खाली बुरे टाइम पे ही भगवान को सोचें, हमें हाँ अच्छाई में भी सोचना चाहिए। yes, all the time, तभी तो always remember Krishna है ना, it is not कि जब दुख में हो then remember Krishna, no, always remember Krishna, yes भुवनेश प्रभु जी, very nicely said। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं, ये स्टोरी है ध्रुव महाराज की। आप सब लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, पर आज ध्यान से सुनना, बिकॉज इन दिस स्टोरी, टीवी पर देखा है वो लॉकडाउन में विष्णुपुरा का हाँ था। वेरी नाइस, पर इस स्टोरी को आज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी में ध्रुव महाराज क्या करने जाते हैं, वो ध्यान योगा करने जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो एक बात की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक राजा था जिसका नाम था उत्तनपादा। उत्तनपादा जो है वो स्वयंभुव मनु के बेटे थे, और स्वयंभुव मनु जो है वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ठीक है। सो ब्रह्मा जी के बेटे हुए स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु के बेटे हुए उत्तनपादा,
ओके, अंडरस्टूड? यानी कि उत्तनापादा के जो ग्रैंडफादर है दैट इज ब्रह्मा जी डायरेक्टली. सो जो उत्तनापादा है उनकी 2 वाइफ्स थी. एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि. ठीक है, जो यंगर वाइफ थी उसका नाम था सुरुचि और जो ओल्डर वाइफ थी उसका नाम था सुनीति. अब उत्तनापादा वाज मोर अटैच्ड टू हिज यंगर वाइफ और जो माताजी ओल्डर, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती थी. हाँ क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती थी. और जो उनके ओल्डर वाइफ थी उसका नाम था सुनीति और उनका एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव. तो एक बात की बात है, और जो यंगर वाइफ थी उसका उनका एक बेटा था जिसका नाम था उत्तमा. ठीक है, सो उत्तनापादा के 2 पुत्र थे, उत्तमा और ध्रुव महाराज. उत्तमा की मदर थी सुरुचि और ध्रुव महाराज की मदर थी सुनीति. तो एक बात की बात है, उत्तनापादा जो है वो अपने महल पे बैठे हुए थे और उनकी गोद में बैठे हुए थे उनके छोटी रानी के बेटे उत्तमा, और वो दोनों हंस रहे थे. तभी अचानक वहां पर ध्रुव महाराज आए. जब ध्रुव महाराज ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तमा उनके फादर की गोदी में बैठा हुआ है तो उसका भी बहुत मन हुआ कि मुझे भी अपनी फादर की गोदी में जाकर बैठना है. इवन आई वांट टू सिट ऑन द लैप ऑफ माय फादर. अब उस समय वहां पर सुरुचि वहां पर थी. सुरुचि यानी कि उत्तमा की मदर, जो राजा की छोटी वाइफ है, वो थी. तो जैसे ही ध्रुव महाराज अपने फादर की गोद में बैठने लगे तो सुरुचि ने उनको पकड़ा और उनको नीचे उतार दिया. उन्होंने बोला, हे ध्रुव, तुम अपने फादर की गोद में नहीं बैठ सकते हो. अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने फादर की गोद में बैठो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी. सो शी गुस्से में वो बोल रही है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही है. शी सेइंग तुम्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी और जब भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तब अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेकर तुम तब उत्तनापादा की गोद में बैठ सकते हो. अब जब ये बात ध्रुव महाराज ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया और वो भागते 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 अपनी मदर के पास गए. और जब वो अपनी मदर के पास गए तब तक उनकी मदर को, सुनीति को, पूरी घटना का पता चल गया था, क्योंकि जो सेवक थे उन्होंने आकर बता दिया कि कैसे सुरुचि ने ध्रुव महाराज के साथ कितना बुरा करा, इसको इतना बुरा बुरा बोला. तो जब सुनीति ने ध्रुव महाराज को देखा तो शी बिकेम वेरी सैड. उन्होंने ध्रुव महाराज को गले लगाया और उनको बोला कि हे ध्रुव, तुम रो मत. उसके इतना सब कुछ होने के बाद भी सुनीति ने ध्रुव महाराज को बोला कि ध्रुव, तुम अपने मन में अपनी मदर, अपनी जो छोटी मदर है सुरुचि के बारे में कुछ बुरा ख्याल मत लेकर आना, यानी इसके बारे में कुछ बुरा मत सोचना. भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं. मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बुरा बोला, पर उन्होंने जो बोला वो सत्य ही बोला. वो उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी चाहिए, अगर हमारे मन में कुछ भी डिजायर है तो वो डिजायर सिर्फ भगवान विष्णु ही पूरी कर सकते हैं. फिर उन्होंने उनको बताया कि जैसे तुम्हारे दादा स्वयंभुव मनु थे, स्वयंभुव मनु ने जब भगवान की प्रार्थना करी तो वो पूरे वर्ल्ड के राजा बने. और जब तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी, उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान दिया, उनको एबिलिटी दी ताकि वो क्रिएशन कर सके. तो भगवान विष्णु है, दे कैन ग्रांट यू एनीथिंग. तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू क्राई. और अपने मन में अपनी यंगर मदर के बारे में कुछ बुरी थॉट भी मत लेकर आना. सो वेरी नाइस टीचिंग सुनीति गिव्स टू ध्रुव महाराज. उन्होंने उनको बहुत अच्छी टीचिंग दी. अब ध्रुव महाराज क्योंकि वो क्षत्रिय थे, he was not an ordinary boy. He said, उन्होंने अपनी मदर की जो बात है उसको दिल पर लगा लिया. उन्होंने बोला, यस आप सही कह रहे हो, अब मैं भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरे परदादा यानी कि ब्रह्मा से जी से भी बड़ा मेरे पास स्थान हो राज्य करने के लिए. You know, be not even only bigger than my father, not only bigger than my grandfather, पर ब्रह्मा जी से भी बड़ा स्थान चाहता हूँ मैं राज्य करने के लिए. और इसलिए अब मैं जाऊंगा जंगल में विष्णु की पूजा, विष्णु पर ध्यान लगाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए. सो उसके बाद उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतारे. उन्होंने जैसे जंगल में जाने के लिए जो कपड़े जरूरी होते हैं, कॉटन के कपड़े, वो पहने, अपने बालों को बांधा और जंगल की ओर चल पड़े. अब आपको पता है ध्रुव महाराज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज ओनली 5 years old.
यानी वो सिर्फ 5 साल के थे। तो अगर आपके घर में आपके कोई छोटे यंगर ब्रदर हैं, ब्रदर सिस्टर 5 इयर्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो 5 इयर्स जहाँ पर बच्चे सिर्फ 5 इयर्स के बच्चे सिर्फ केजी में होते हैं, वेयर दे हार्डली एबल टू मेक वन सेंटेंसेस प्रॉपर्ली, है ना? Yes. Yes. तो जब वो जा रहे थे, जब ये सब हो रहा था, तब ऊपर से नारद मुनि देख रहे थे। तो नारद मुनि वाज वेरी अमेज्ड। नारद मुनि को ये तो समझ आया कि उत्तनपादा और जो सुरुचि ने करा का वो सब गलत था। हाउ ध्रुव वाज रियली हर्ट। उनको क्या करना था, वो तो सिर्फ उनको अपने फादर के गोद में बैठना था। पर नारद मुनि ने बोला ठीक है, लेट मी गो एंड टेस्ट हिम। तो नारद मुनि आए जंगल में। तो उसके बाद ध्रुव महाराज ने उनको उनको प्रणाम करा। तो नारद मुनि ने बोला उठो उठो वत्स उठो, तुम इतने छोटे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने बोला कि नारद मुनि, मैं जा रहा हूँ जंगल में, मैं भगवान विष्णु की प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं उनके ऊपर मेडिटेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा राज्य चाहिए। तो नारद मुनि हंसने लगे। उन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर, तुम्हें जरूर करना चाहिए, पर अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है। तो तुम ऐसा करो, अभी तुम घर चले जाओ, और कुछ सालों बाद आना जब तुम बड़े हो जाओगे, राइट? तो ध्रुव महाराज ने बोला नहीं, मेरे को अभी ही जाना है। तो नारद मुनि सोचने लगे, इतना छोटा बच्चा, और उसने अपनी अपनी मदर की बात को कितने ध्यान से सुना। फिर नारद मुनि ने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें ध्यान कैसे लगाना चाहिए और कहाँ जाकर लगाना चाहिए। तो नारद मुनि ने उनको पूरा प्रोसेस समझाया कि तुम अंदर डीप अंदर अंदर फॉरेस्ट पे जाओ, और वहां पर एक फॉरेस्ट है, एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट है जिसका नाम है मधुवन। तुम वहां जाओ, वहां पर एक तालाब है, वहां तालाब में स्नान करो, दिन में 3 बार स्नान करो। उसके बाद एक पेड़ में पद्मासन में जाकर ध्यान लगाओ। ठीक है? सो नाउ ध्रुव महाराज हैं, वो चलते जंगल के अंदर जाते हैं। और हाँ, एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई उन्होंने, बोला ध्यान लगाते समय तुम्हें एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दिस वाज द मंत्र प्रिस्क्राइब्ड इन दैट योगा, इन सत योगा। सो ध्रुव महाराज सेड ओके। देन ही वेंट, वो वहां पर गए, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही करा जैसे नारद मुनि ने बताया। उन्होंने स्नान करा, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, उन्हें पद्मासन में बैठे, आंखें बंद कर और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगे। और अपना सारा ध्यान इस मंत्र पे लगाने लगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे महीनों तक तपस्या करी। पहले महीने, फर्स्ट मंथ, वो सिर्फ हर 3 दिन में कुछ फ्रूट्स खाते थे, हर रोज भी नहीं, हर 3 डेज में कुछ फ्रूट खाते थे। उसके बाद सेकेंड मंथ में वो हर 6 दिन के बाद कुछ पत्तियां खाते थे, लीव्स, जो पत्तियां नीचे गिरी हुई है, सिर्फ लीव्स खाते थे, और पूरे पूरे दिन भगवान के नाम पर ध्यान लगाते थे। उसके बाद थर्ड मंथ में वो हर 9 दिन बाद सिर्फ पानी पीते थे। सो इमेजिन, फर्स्ट मंथ में वो सिर्फ फल खाते थे 3 दिन बाद, सेकेंड मंथ में वो सिर्फ पत्तियां खाते थे 6 दिन बाद। हाँ जी बेटा। माता जी, मैंने जब ये टीवी पर देखा था तभी उसमें दिखाया था कि लक्ष्मी जी आके उनको खाना देती थी। नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द राइट। ये भागवतम की स्टोरी है, डायरेक्टली फ्रॉम भागवतम। ठीक है? सो वो फिर उसके बाद थर्ड मंथ में वो हर 9 दिन बाद सिर्फ पानी पीते थे। उसके बाद फोर्थ मंथ में वो सिर्फ हर 12 दिन में हवा खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, सिर्फ हर 12 दिन बाद मुंह से हवा लेते थे। उसके बाद फिफ्थ मंथ में वो उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर मेडिटेट करना शुरू कर दिया। वो एक पैर पर खड़े होते थे एंड ही यूज्ड टू कंटिन्यू मेडिटेटिंग, डूइंग नथिंग एट ऑल, ओनली, एंड इवन यूज्ड टू कंट्रोल हिज ब्रेथ, वो अपनी सांस को भी कंट्रोल करके रखते थे। अब इतनी घोर तपस्या से सबसे पहले और भी कोई परेशान हो ना हो, एक जो देवता है वो परेशान हो जाते हैं। डज एनीबॉडी नो? हाँ, उनकी तो गद्दी हिलने लगती है उनको लगता है कि बस मेरे से मेरी गद्दी छिन जाएगी। तो इंद्रदेव गॉट वेरी, उनको लगा कि उनका इंद्रासन मांग लेगा। यस यस, उनको लगा सबसे पहले तो मेरे इंद्रासन ही जाएगा। तो ही गॉट वेरी वरीड। उन्होंने बाकी देवी देवता को बुलाया, सब लोग, एवरीबॉडी कुड फील द हीट ऑफ दिस मेडिटेशन,
क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन थी कि वो ऊपर की लोकों तक उसकी उसकी हीट, उसकी तप पहुंच रहा था. So all of them together went to Lord Vishnu और उन्होंने उनको बोला कि हे मधुसूदन, नीचे धरती लोक पर एक छोटा सा बच्चा मेडिटेट कर रहा है, उस मेडिटेट का तप चारों ओर फैल रहा है. एंड जो विष्णु है, ही कुड अंडरस्टैंड, वो उनको पता था कि ध्रुव महाराज मेडिटेट कर रहे हैं. एंड ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. ही सेड यस आई नो एंड नाउ इज द राइट टाइम. अब सही समय आ गया है, अब मैं जाकर ध्रुव से मिलूंगा. तो वो अपने वाहन पे बैठते हैं, गरुड़ देव पे बैठते हैं और वहां पहुंचते हैं ध्रुव महाराज के पास. और देखते हैं कि ध्रुव महाराज कैसे, छोटे से ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं. जब वो जाते हैं तो ध्रुव महाराज पहले भगवान के दर्शन अपने अंदर करते हैं, अपने आईज क्लोज करके दर्शन करते हैं और आईज क्लोज कर बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर आप सच में बाहर है तो मुझे बताएं कि आप सच में प्रकट हो गए हैं, मैं तभी अपने आंखें खोलूंगा. क्योंकि इतने महीनों में मुझे बहुत बार ऐसा एहसास हुआ है कि आप आ चुके हैं, पर वास्तव में आप नहीं आए थे. तब भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला, हे ध्रुव, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ. तो ध्रुव महाराज आंखें खोलते हैं और भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर एकदम से स्टंट रह जाते हैं. ध्रुव महाराज के हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनकी पूरा बॉडी एक्सटैटिक हो जाता है भगवान के दर्शन मात्र से. फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को प्रणाम करने के बाद वो भगवान को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं. भगवान को he wants to please the Lord with his pleasing words. उनके वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, पर क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे. He did not had so much of vocabulary. तो वो समझ नहीं आ रहा था उनको क्या बोले क्या बोले क्या बोले. और ये सब भगवान विष्णु देख लेते हैं कि because we know that God is in our heart in the form of Paramatma. So God, Lord Vishnu sees, and he sees कि ध्रुव wants to say something, but because he's so young he does not know how to say. तो भगवान सिर्फ अपना conch shell, अपना शंख ध्रुव महाराज के सर पर टच कर देते हैं. And because of that ध्रुव महाराज is able to express his feeling. lot of time हमारे अंदर बहुत feelings होती है, हम express करना चाहते हैं पर words कम पड़ जाते हैं. So then Dhruv Maharaj glorifies the Lord with very beautiful prayers कि oh Lord, you just like moon, you can dispel any kind of distress. उसके बाद भगवान विष्णु उनसे बोलते हैं कि अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए. अब जैसे भगवान उनको ये बोलते हैं ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं. वो कहते हैं मेरे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं और मैं उनसे क्या मांगने के लिए मैं तपस्या कर रहा था, सिर्फ कुछ कांच के टुकड़े भगवान के सामने. तो अगर मुझे पूरा यूनिवर्स भी मिल जाए ये राज्य करने के लिए तो वो कुछ भी नहीं है. इट इज नथिंग. What is more important is to serve the Lord rather than becoming king of the whole universe. So he felt very ashamed of himself. And again the Lord could understand. So भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम इस धरती लोक पर रहोगे, you will be the king of the whole world. और उसके बाद जब तुम धरती लोक पे से चले जाओगे, then you will come to the spiritual world and you will have your own planet. तुम्हारा एक अपना खुद का प्लैनेट होगा जिसका नाम होगा ध्रुव प्लैनेट. और ये वही प्लैनेट है जो हमें रात को एक स्टार दिखता है ना, ध्रुव तारा. पूरे रात में एक स्टार है जो सबसे ब्राइट स्टार है, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं. यस यस. सो वो तारा जो है वो ध्रुव, दैट होल प्लैनेट इज ध्रुव टू रूल. उसके बाद ध्रुव महाराज वापस अपने घर जाते हैं. घर जाकर उनके फादर बहुत वरीड होते हैं. जो उनकी मदर होती, सुरुचि माता जी, छोटी मदर होती, वो भी बहुत अफसोस करती कि मैंने ऐसे क्या करा. एंड सुनीति वाज सो हैप्पी. तो वो सब लोग ध्रुव महाराज से मिलते हैं और उनको बहुत हैप्पीनेस होती है. एंड दे ऑल फील द लव ऑफ ध्रुव महाराज, दे लव हिम एंड दे वेलकम बैक होम. और जब ध्रुव महाराज जा रहे होते हैं इस वर्ल्ड में, thousands and thousands of years के बाद जब वो जाते हैं, then he becomes the king of the Dhruv planet, which is a star. एक बहुत ही very interesting thing comes here. ध्रुव महाराज, because he is very pure at heart, जब ध्रुव महाराज को प्लेन लेने आता है, स्पिरिचुअल प्लेन लेने आता है, तो ध्रुव महाराज एकदम से रुक जाते हैं. तो ध्रुव महाराज सोचते हैं कि मैं इस प्लेन में कैसे जा सकता हूँ जबकि मेरी मदर यहीं पर अर्थ पर है. He thinks of his mother and he says कि then उनसे उनसे
जो विष्णु दूत है वो पूछते हैं कि आप क्यों रुके हुए हैं, आप प्लीज प्लेन पे बैठो। तो वो बोलते नहीं, मैं पहले देखना चाहता हूँ कि मेरी मदर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस चली जाए, तभी मैं इस पर बैठूंगा। तो तभी वो उनको बोलते हैं कि आप ऊपर देखो, जो विष्णु दूत बोलते हैं आप ऊपर देखो। तो जैसे ध्रुव महाराज ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि एक और प्लेन में उनकी मदर ऑलरेडी उनसे ऊपर जा रही होती है। And that's when Dhruv Maharaj sits on his spiritual plane and goes to his own spiritual planet, which is Dhruv star, right? So a person who has saintly qualities has all the saintly qualities, हरे है ना? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कौन सी मदर गई थी वहां पर? सुनीति उनकी मदर। और जो सुरुचि थी, व्हाट हैपेंस इज कुछ टाइम बाद जो उनका जो छोटा भाई था उत्तम, वो उसकी एक गंधर्व के साथ लड़ाई करते समय मौत हो जाती है, सो ही डाइज। एंड जो उनकी छोटी मदर होती सुरुचि, उनकी भी एक फॉरेस्ट फायर में मौत हो जाती है। ठीक है, ओके माता जी, बिकॉज वी थैंक नो यू। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने सीखा था ना, एवरी एक्शन, अगर कोई भगवान के लिए हम वो एक्शन ना करें, अगर हम भगवान को सेंटर में रखते कोई कार्य ना करें, तो उसका रिएक्शन होता है चाहे अच्छा चाहे बुरा, है ना? माता जी उत्तम के कौन थे पिताजी? किसके? उत्तनपादा के? यस माता जी। स्वयंभुव मनु थे पिताजी। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज अ श्लोका दैट यू नीड टू लर्न। हाँ जी बेटा। माता जी। हाँ, यस यस। माता जी मतलब कृष्णा कब पैर हुए थे अर्थ पे? कृष्णा अपीयर हुए थे द्वापर युग में। माता जी 2 मंथ में 1 ईयर में मतलब 2 मंथ में 1 में मतलब सी दैट अगेन बेटा, मतलब जब मतलब ध्रुव महाराज मतलब वो कर रहे थे ना अच्छा, हाँ 5 इयर्स में हुए थे, क्योंकि उन्होंने 6 मंथ्स की तपस्या करी थी। 6th मंथ में, छठे महीने में अपीयर हुए थे, 6th मंथ में। माता जी थैंक यू। हाँ, वेलकम। Okay, so we learn this shloka. This is a very beautiful shloka with a very beautiful meaning, right? So all of us can, all of you can repeat after me. Yoginam api sarvesham yoginam api sarvesham yoginam api sarvesham madgate nantaratmana मद्गते अंतरात्मना मद्गते नंतरात्मना मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः समे युक्त तमो मतः वेरी नाइस। एक बार पूरा करेंगे, ठीक है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः वेरी नाइस। हरि बोल। एक बार और करते हैं, then we'll recite individually, okay? योगिनाम अपि सर्वेषां
मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः. Very nice, perfect. So maybe what we can do is some of you can practice. I mean, we can recite. Okay. Mataji, may I? Mataji, can I? Yes, all of Mataji, you may can I? one by one. Yes. So who was who? Mataji, may I? Yes. Go ahead, beta. May I? Yes, Prisha Mataji. Is that Prisha Mataji? Right. Go ahead. Yes. Okay. Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana shraddhavan bhajati yo mam samayukta tamo matah. Hari bol, Hari bol, Prasha Mataji. Very nicely recited. Perfectly recited. Mataji, can Hari I? bol. Yes. Go ahead, beta. Yes. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. Hari bol, Sheetal Mataji. Very, very nicely recited. Big Hari bol for you. Very nice. Okay. So who wants to, and whoever it is recited, you can lower your hand. So I will know that you've recited. Okay. So who wants to recite next? Subhadra Mataji, do you want to recite? Yes, Mataji. Yes. Go ahead. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. Very nice. Hari bol. Very nicely recited, Subhadra Mataji. Perfect. I mean, your words pronunciation were perfect, right? Hari bol, Subhadra Mataji. Perfect. Okay, Aditi Mataji, you want to recite next? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. Hari bol, Hari bol, Aditi Mataji. Very, very nicely recited. Hari bol for you. Okay, who wants to go next? Preeti Mataji. Yes, you can unmute yourself, beta. Preeti Mataji. Okay, Mataji. योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. Hari bol. Very, very, very nicely recited, Preeti Mataji. Mataji, and my brother also wants to recite. Yes, Darsh Prabhuji, yes. Yoginam api sarvesha madgate antaratmana yadi Shraddhavan bhajate yoma same yuktatamo matah. Hari bol. Darsh Prabhuji, how old are you? Mataji, I am 8 years old. Hari bol, very nice, so sweet. So at 8 years old, you're able to recite the shloka so beautifully. So big Hari bol for you. Very nicely recited. Hari bol. Most welcome. Garv Prabhuji, you want to recite next? Yes, Mataji. Go ahead, beta. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. Hari bol, Hari bol, Garv Prabhuji, very nicely recited. Hari bol. आप संडे स्कूल के क्लास में जा रहे हो? कोई किसी क्लास में जा रहे हो? Mataji, ऑनलाइन? हाँ जी. my brother also wants to recite. Yes. Adit Prabhuji also wants to recite? Yes, sure. Yes, ma'am. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. Hari bol, Hari bol, Adit Prabhuji, very nicely recited. A big Hari bol for you. Hari bol. Okay, perfect. Jania Mataji, you want to recite next? Yes, you can unmute yourself.
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही जाने माता जी, आई डोंट नो व्हाई. Try unmuting yourself. Ma'am, is my voice audible? हाँ, now it's audible. Yes, now we can hear you. Yes. Yes, ma'am. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हरी बोल, वेरी नाइस. आप सब लोगों के जो शब्दों का उच्चारण है इतना क्लियर है, मतलब इट इज सो परफेक्ट. मतलब मेरे को पढ़ने में जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, मुझे संस्कृत पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप सब लोगों के योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज सो परफेक्ट. सो बिग बिग हरी बोल फॉर यू जाने माता जी. Thank you, ma'am. Okay, so Parth Prabhuji, do you want to recite next? Yes, Mataji. Yes. योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सौम्य युक्ततमो मतः. Hari bol, hari 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 bol. Parth Prabhuji, very nicely recited. Big hari bol for you. And then Mataji, you want to recite next, beta? Yes, Mataji. Yes, go ahead. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. Hari bol. Perfect recitation. Again, perfect recitation. A big, big, big hari bol for you, Ananya Mataji. Very nicely recited. Okay, Bhuvnesh Prabhuji, do you want to recite next, beta? Yes, Mataji. हाँ, sure, go ahead. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामते युक्ततमो मतः. Very nice. Hari 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 bol, Bhuvnesh Prabhuji. Very nicely recited. Big, big, big hari bol for you. Thank you. Okay, so Charu Mataji, you want to recite next? Okay, Mataji. हाँ. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. Very nice. Hari 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 bol, Charu Mataji. Very big hari bol for you. हाँ जी, yes beta. Mataji, I am not able to show my screen. Try now. Okay, so okay, perfect. Okay, hari bol. All right. Vrinda Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. हाँ, go ahead. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. Hari bol, hari 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 bol, Vrinda Mataji. Very, very nicely recited. Very sweetly recited. Okay. Shaurya Prabhuji and Arush Prabhuji, both of you want to recite? Yes. थोड़ी शारुष प्रभु थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है, बस थोड़ी सी धीरे आ रही है. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरा आत्मना सर्वे जपना भजते यो मे वेरी नाइस. हरि बोल. जब हम ना दो लोग इकट्ठे रिसाइट करते हैं ना, then it becomes one, it becomes easier to remember. Secondly, it becomes very melodious. क्योंकि जब आप कभी ऑब्जर्व करना, जब भी कोई भी हम संस्कृत के किसी श्लोका को या मंत्र को जब इकट्ठे रिसाइट करते हैं, तो it becomes like a music. So it is very nice. It'll be very nice if both of you can, together record this video. बहुत अच्छा लगेगा. Okay, Arush Prabhuji and Shaurya Prabhuji. ठीक है. Big hari bol for you. Okay, who's left? Nishika Mataji is left and Arav Prabhuji is left, right? Ma'am, can you repeat it? Ha, yes. Do you want to repeat after me, Nishika Mataji? Yes, ma'am. Okay. Yoginam api sarvesham matgate
मद्गते अंतरात्मना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सत्यवान भजते यो मना समे युक्ता तमे युक्त तमो मतः. तमो मतः. Very nice. Hari bol Rishika Mataji. Very nicely recited. Big Hari bol for you. And now Arav Prabhuji is left. Arav Prabhuji, do you want to recite? Yeah. Yes, Mataji. Yeah. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. Very nice. Hari bol Arav Prabhuji. Very beautifully recited. Okay, so we have today's quiz. Before we go jump on to today's quiz, does anybody else wants to recite? Sanvi Mataji, Aditya Prabhuji. Mataji, Kanav Prabhuji is also left. Kanav Mataji is also left. Oh, I'm so sorry. Kanav Mataji, sorry. I didn't see. Do you want to recite, beta? Let me unmute you. योगी नामपि सर्वेषां मद्गते आत्मनः श्रद्धावान् भजते यो मे युक्ततमो मतः. Very nice. Hari bol Kanav Mataji. Very beautifully recited. माताजी हाँ जी बेटा. Yes, Bhavnesh Prabhuji. आज का होमवर्क क्या है? मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है. अच्छा ठीक है. Let me first tell you the homework. And आज का हमारा होमवर्क है, आज हमें बनाना है एक नारद मुनि जी का वीणा बनाना है. ओके ओके माताजी. क्या I will बनाना है share माताजी? नारद मुनि का वीणा. ठीक है. So I will share this link and this picture. YouTube का link है, picture I will share it in the group. Okay. Okay. Yes माताजी. Yes. So we have a quick quiz today. Let me share my screen. Is anybody else left for recitation? कोई और रह गया जिसने recite नहीं करा बेटा? Okay, let me. हाँ जी बेटा. Yes. माताजी, हमें जो नारद मुनि का वीणा बनाना है उसकी ड्राइंग बनानी है. हाँ, ड्राइंग बनानी है. Yes. ओके माताजी, थैंक यू. Thank you. Lalita Mataji, Nandini Mataji, Ayushman Prabhuji, Priya Mataji, Sanvi Mataji, Aditya Prabhuji. Do you want to recite? हमें से कोई recite करना चाहेगा श्लोका? I can help you with it also. Don't worry. No? Okay. So we'll go to our quiz today. So आज की quiz है basically it is a memory quiz. ठीक है? So जो online खेलने से थोड़ा dangerous हो जाता है. But I will show you a picture. और वो पिक्चर आपको सिर्फ 10 seconds के लिए दिखाई जाएगी. And after that, don't do cheating. ठीक है? उसके बाद then we'll ask questions and then you have to tell the answers. Okay, is it fine? You all understood? Yes, ma'am. आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. Okay. So let me go to the picture. First picture. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. आपने पिक्चर देख लिया? Yes माताजी. Yes, ma'am. माताजी, चीटिंग मत करना. हाँ, yes बेटा. माताजी मुझे ये पूछना था, जो अभी हमने श्लोक का अर्थ पढ़ा है, हाँ. उसे मेरे को और मेरे ब्रदर को दोनों को वीडियो बना के ग्रुप में भेजना है ना? हाँ, yes बेटा. Yes, Shaurya Prabhuji and Arush Prabhuji, both of you. Yes, together. ओके माताजी. ठीक है. Thank you. Okay. So the question is, उस पिक्चर में कितनी cows थी? How many cows were there? माताजी माताजी 2. माताजी 7. हाँ, there were seven cows. Yes, perfect. Very nice. Hari bol. Okay. उस पिक्चर के अंदर कितने peacocks थे? Mataji 2. 1 माताजी. 1.
एक पीकॉक था और एक पीहेन थी, है ना? पीकॉक एक था, हाँ, यस, 2 एक्चुअली, 1 पीकॉक एंड 1 पीहेन भी कह सकते हैं, ओके। माताजी आपने माता तो जी बट peacock इसमें पूछा उनके था जेंडर ना। पहचानना माता जी, वो हम कैसे हाँ, करेंगे माता जी? जेंडर है, एग्जैक्टली, वो भी करेक्ट है, 2 इज आल्सो करेक्ट आंसर, 1 पीकॉक 1 पीहेन, ठीक है। Okay, so then we have, yes Ananya Mataji, sure, definitely you can go. Then we have next question is कि कितने फ्रेंड्स थे, काउहर्ड बॉयज थे कृष्ण बलराम के? कृष्ण और बलराम के अलावा कितने फ्रेंड्स थे? माता जी उनके अलावा 5 5 yes 5, that's right, 5, okay, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया हुई बिल्कुल फटाफट बता रहे हैं 5, okay. How many trees were there with flowers? माता जी 2 माताजी 3 मैम 3 हाँ, 2 थे। एक्चुअली हाँ, मतलब 2 और 3 इज राइट, क्योंकि जो दूर के ट्रीज है ना उसमें एक्चुअली 3 ट्रीज में फ्लावर्स हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। एक 1 yellow and 2 pink. यस, और कितने फ्रूट वाले ट्रीज थे? आई मीन कितने वो ट्री है जिसमें मैंगो फ्रूट था? माताजी 1 Yes, perfect. Okay, now I'll give you less time. This is next picture, okay? Very famous picture. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Very famous picture, है ना? yes माता Very famous picture, right? सब लोग ने देखा होगा गोवर्धन लीला। Okay. yes माता अब जी ये जो क्वेश्चन है ये आप बिना देखे भी बता सकते हो कि भगवान ने गोवर्धन अपने कौन से हाथ में और कौन सी उंगली में उठाया था? माता जी अपने हाथ पे और उंगली के नेल्स पे राइट हैंड के लेफ्ट हैंड? सॉरी, Left hand. लेफ्ट हैंड प्रभु जी, यस। राइट हैंड भगवान ने गोवर्धन अपने राइट पे लेफ्ट, और माता जी छोटी उंगली के नेल्स पे उठाया था। छोटी उंगली के नेल्स पे उठाया था माताजी। यस, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नेल पर उठाया था, वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। और वहां पर कौन कौन से एनिमल्स थे जो अभी हमने पिक्चर देखी थी? काऊ थी, यस, वेरी नाइस। एक एलिफेंट भी था। Yes, Mataji, there was an elephant also. परफेक्ट, वेरी नाइस, हरी बोल, वेरी नाइस। एंड कितने लोग खड़े हुए थे और कितने लोग बैठे हुए थे? बाकी सब तो जो एक बैठा हुआ था, कोई गेस कर सकता है कि वो कौन था जो बैठा हुआ था? माता जी बलराम जी? नहीं, वो कौन था जो उनसे माफी मांगने आया था? इंद्रदेव इंद्रदेव, हरी बोल, हरी बोल, yes, that's right, perfect. So Indradev was sitting and rest of them were standing. Perfect. So माताजी कृष्ण जी ने गोवर्धन इसलिए उठाया था क्योंकि कृष्ण को ना सारे लोग ना मानते थे, उनकी बात मान रहे थे, और जो इंद्रदेव थे उनकी पूजा वृंदावासियों ने नहीं की थी, इसलिए इंद्रदेव गुस्सा होके उनने ये सब करवाया था। हाँ, yes, perfect, yes, absolutely, शौर्य प्रभु जी, बिल्कुल सही। Okay, so we'll do our ending prayer today and then we'll end our class. So all of us can do this together. हम इकट्ठे कर सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमामि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। Can I read the meaning of this? Mataji, can I read the meaning? Can I read Holy scripture, Okay. अच्छा, let's do one thing. Ma'am, can I read the meaning of it? Let us all read it Can together. I read the meaning? Only one mantra is holy name.
Hari bol, hari bol. Okay. Mataji, So can let Ma'am, can I read the meaning of it? Ma'am, can I read? Ma'am, can I? Nishika Mataji, आपने एक बार पहले पढ़ा था ना. Let Riti Mataji read the meaning. Riti Mataji, go ahead. माताजी लीड कर सकते हैं क्लास? हाँ, yes, Bhuvnesh Prabhuji, yes, we can lead the class. Sure. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Shri Krishna. Hari bol, hari bol, Riti Mataji. Very nicely cited. Thank you. So we can end the class today, and homework के लिए हम सबको वीणा बनाना है. I will share that link with you, and it's a beautiful वीणा. उसको आप YouTube से देखकर बना सकते हो. And by drawing the वीणा, we can remember that how Narad Muni जो है वो हर किसी he's a pure devotee and is guru for a lot of people. और शास्त्रों में लिखा हुआ है, there's a saying that says लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है. राइट, कि एक शुद्ध भक्त का लव मात्र संग, यानी कि छोटा सा एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी कैन चेंज आवर लाइव्स. राइट, so we will draw that veena of Narad Muni in our drawing. Can we leave the class? Hi, yes, Nishika Mataji. So we'll end the class. I know it's already very late. Yeah, have a Gauranga day. Have a Gauranga day, beta. If anybody has a question, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, beta.